اچھا چلے اب یہ بتا دیں اسلام میں ختنہ کیوں کیا جاتا ہے؟ نبی کی وہ پڑھنے میں آیا ہے ریڈی میڈ، ہم کو تو آرڈر ہے بھیا، ہم لوگ کر رہے، ہم لوگ کہاں کو پہ دیکھ آرڈر رہے ملا؟ بابا کوئی کچھ دکھا دیں، قرآن کی صاحب۔ آیت دکھا دیں، حدیث بھیا دکھا دیں۔ عرب میں جا کے دیکھو، اب ہر کوئی عربی کرتا ہے، دوسرے دن ہی کرتا ہے، پیدا ہونے کے اچھا دوسرے دن ہی۔ آپ نے پہلے بولا، میں نے آپ سے بولا، آپ نے کہا کہ جی نبی کا ختنہ آپ کو نہیں پتا۔ میں نے کہا نہیں پتا۔ قرآن میں سے حدیث میں سے دکھا دیں ختنہ کرنا ہے، آپ نے کہا آپ کو نہیں پتا۔ تو بیسیکلی آپ ایک ٹریڈیشن کو فالو کر رہے ہیں جس کا آپ کو امب کا نہیں پتا کہ کیوں فالو کر رہے ہیں، بس آپ فالو کر رہے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ ایک سمپل ٹریڈیشن ہے، اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ ہاں چلو آپ لوگ ٹریڈیشن سمجھ لو، کر رہے ہم کو چلو تو۔ نہیں، محمد نے اپنا ختنہ تو میں پڑھنے میں آیا کہ وہ تو ختنہ ریڈی میڈ ختنہ والا ہی پیدا ہو گیا۔ اللہ نے ختنہ کر کے بھیجا تھا اس کا۔ ہاں ایسا میرے پڑھنے میں آیا ہے۔ اللہ نے نبی کو تو ختنے کے ساتھ پیدا کر دیا آپ کے ٹریڈیشن کے ہوں مطابق، ٹھیک ہے، لیکن ہوں۔ نبی کو 40 سال تک بھٹکائے ہوئے رکھا۔ کیا نبی نے ننگا طواف کیا؟ جس وقت وہ ابھی اس کو نہیں ملا تھا پروفیسی۔ 40 پروفیسی، اس سے پہلے ہوں طواف نہیں کیا تھا خانہ کعبہ کا؟ کیا تھا نا؟ اوکے۔ محمد نے جب اس وقت طواف کیا سب لوگ ننگے کر رہے تھے، محمد واحد تھا جو کپڑے پہن کے کرتا تھا، تو کسی بھی بندے نے کیوں نہیں لکھا کہ محمد جب بھی خانہ کعبہ میں جاتا تھا وہ کپڑے پہن کے جاتا تھا؟ لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ محمد سے پہلے خانہ کعبہ کا ننگا طواف ہوتا تھا، لیکن کسی ایک بھی بندے نے نہیں لکھا کہ محمد جب بھی پہلے کبھی خانہ کعبہ میں گیا تھا وہ کپڑے پہن کے جاتا تھا۔ کیوں نہیں لکھا؟ جاہلیت کے کام تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے ہیں۔ قرآن کہتا ہے محمد نے کیے، قرآن کہتا ہے کہ کدھر ہے؟ محمد ووجدک ضالن فہدایا، محمد گمراہی میں تھا، لاس تھا، ہم نے اسے ہدایت دی۔ تو مجھے بتاؤ قرآن سچا یا تم؟ نمسکار دوستو، اللہ کو ننگاپن بہت پسند ہے۔ آخریت کے دن حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے سارے مومن ننگے کھڑے ہوں گے، اللہ کے رسول محمد بھی ننگے کھڑے ہوں گے، امت کی مائیں حضور کی جو 11 بیویاں ہیں وہ بھی ننگی دھڑنگی کھڑی ہوں گی، اور جتنے بھی دنیا میں مومن ہیں یا مومنائیں ہیں، ماتا پتا بھائی بہن سب ایک دوسرے کے سامنے لائن لگا کر کے ننگے کھڑے ہوں گے۔ ایک آشچر کی بات اور ہے کہ جو مسلم سنت کے نام پر ختنہ کراتے ہیں آخریت کے دن، ان سبھی جب وہ ننگے کھڑے ہوں گے تو آٹومیٹک اللہ ان کے ختنہ کیے ہوئے پارٹ کو دوبارہ سے جوڑ دے گا۔ پھر ایک سوال اٹھتا ہے، جب اللہ کو یہ ختنہ اوپر جوڑنا ہی ہے تو پھر آخر یہ مومن ختنہ کراتے کیوں ہیں؟ اور یدی ختنہ کرانا اسلام کے لیے بہت ضروری ہے اور اللہ نے جب ان کو بنایا ہے تو اللہ وہاں سے ہی سب کا ختنہ کرا کر کے کیوں نہیں بھیجتا ہے؟ دیکھیے بہت ہی مزیدار ڈیبیٹ، ایڈم سیکر، ساجد امام، ایکس مسلم ساحل کے ساتھ بڑی زبردست ڈیبیٹ۔ اچھا چلے اب یہ بتا دیں اسلام میں ختنہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ختنہ کیوں کیا جاتا ہے؟ بس نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی نے بولا کہاں ہے، پہ فالو کر رہے ہیں ہم لوگ۔ کہاں پہ نبی نے سنت کرائی تھی اپنی؟ نبی کی وہ پڑھنے میں آیا ہے ریڈی میڈ، ہم کو تو آرڈر ہے بھیا، ہم لوگ کر رہے، ہم لوگ کہاں کو پہ دیکھ آرڈر رہے ملا؟ بابا کوئی کچھ دکھا دیں، قرآن کی صاحب۔ آیت دکھا دیں، حدیث بھیا دکھا دیں۔ عرب میں جا کے دیکھو، اب ہر کوئی عربی کرتا ہے، دوسرے دن ہی کرتا ہے، پیدا ہونے کے اچھا دوسرے دن ہی ایک کرتا ہے۔ سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ، تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں نبی کا ختنہ نہیں ہوا کبھی، آپ کو نہیں پتا، اگر ہوا بھی ہے تو نمبر ون۔ دوسرا آپ میں کو نہیں تو پتا، پڑھنے میں۔ سنو شفیع ہاں بولو شفیع بولو۔ شفیع، ہاں سینٹنس کے بولو بیچ میں بولو۔ انٹرپٹ مت کرنا دوبارہ۔ اوکے اوکے پہلی اوکے بات بول، یہ ہے سوری کہ بول۔ آپ نے پہلے بولا، میں نے آپ سے بولا، آپ نے کہا کہ جی نبی کا ختنہ آپ کو نہیں پتا۔ میں نے کہا نہیں پتا۔ قرآن میں سے حدیث میں سے دکھا دیں ختنہ کرنا ہے، آپ نے کہا آپ کو نہیں پتا۔ تو بیسیکلی آپ ایک ٹریڈیشن کو فالو کر رہے ہیں جس کا آپ کو امب کا نہیں پتا کہ کیوں فالو کر رہے ہیں، بس آپ فالو کر رہے ہیں۔ کیا میں کریکٹ کہہ رہا ہوں؟ بھیا میں تو، ہم لوگ ٹھیک ہے، آپ ٹریڈیشن کو فالو کر رہے ہیں، بولو آپ کو کیا پرابلم ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں، پرابلم کی بات ہے، پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ ہاں آپ نہیں، ہم صرف ایک، ٹریڈیشن آج ہاں ہم نے دیکھا ادھر ہاسپٹل جو ہے قطار میں بڑے بڑے بورڈ لگے بھائی، رہتے، ہیلو ادھر ہیلو، بہت ساری چیزیں لکھے، اگر اس میں کو نے آپ ٹریڈیشن سمجھ رہے، اس کو اگر ٹریڈیشن سمجھ رہے ہو، کیا ایکسپٹ ٹریڈیشن ہے بولو؟ اوکے، تو یعنی کہ یہ ایک سمپل ٹریڈیشن ہے، اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ ہاں، ہاں ایسے ہی ٹریڈیشن کی وجہ سمجھو، سے کوئی کر رہے ہیں نا، واسطہ مطلب نہیں۔ مذہب کی وجہ سے تو نہیں کر رہے ہیں نا، ٹریڈیشن کی وجہ سے کر رہے ہیں۔
हाँ चलो आप लोग ट्रेडिशन समझ लो, कर रहे हैं, हमको चलो साफ नहीं, सफाई चलो का नहीं, अच्छा लग समझ रहा है, लो साफ नहीं। सफाई है। हेलो भाई, हाँ आई डोंट केयर क्लीननेस, साफ सफाई। क्लीननेस। अरे हाँ भाई, चलो क्लीननेस। आई डोंट केयर अबाउट स्टुपिडिटीज, ठीक है। ओके सिंपल ओके। सवाल का सिंपल जवाब सर। आप यहाँ पे हम्म। मेरे साथ एग्री करते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रेडिशन है और आपको अम्ब का नहीं पता है कि वाकई मोहम्मद ने अपना खतना करवाया या नहीं करवाया, या मोहम्मद ने कहा कि खतना करो या नहीं करो, करेक्ट? मैं तो आपको राइट नॉलेज दे सकता हूँ कि मैं ये प्लीज दीजिए। साजिश निकाल सकता हूँ क्या खतने के बारे में, हदीस होगी, नहीं तो ऐसा ही नहीं, इसको ट्रेडिशन नहीं बना सकते इसको। ओके, तो क्या मोहम्मद ने आपको खतना करवाया था अपना? मोहम्मद ने अपना खतना तो मैं पढ़ने में आया कि वो तो खतना रेडीमेड खतना वाला ही पैदा हो गया है। अल्लाह ने खतना करके भेजा था उसका? हाँ ऐसा मेरे पढ़ने में आया है। अच्छा अच्छा, अल्लाह खतना करता है, ओके। तो नबी ने हाँ अगर खतना नहीं कभी अल्लाह कराया? अल्लाह 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 ईसा मसीह को बगैर बाप का पैदा करता तो खतना करके क्यों नहीं निकाल सकता? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, एक एबनॉर्मल बंदा मैं पैदा भी तो किया अल्लाह बोल ने रहा हूँ आउट ऑफ ना, द ब्लू। ओके। मैं भी लेकिन तो अच्छा, बोल आप रहा हूँ सुने ना। जरा, अब सुने जरा, अब यहाँ पे सुने, कितनी मजेदार बात बताने लगूँ आपको। अल्लाह ने नबी को तो खतने के साथ पैदा कर दिया आपके ट्रेडिशन के हम्म। मुताबिक, ठीक है। लेकिन हम्म। नबी को 40 साल तक भटकाए हुए रखा। 40 साल तक वो तो कोई कचरा काम तो नहीं कर रहे थे, सादिक सच्चे अमीन थे। भटका हुआ बंदा कचरा काम नहीं करता तो क्या करता है? अरे भाई आपको जितने अभी अंबिया प्रोफेसी मिलने के पहले मासूम होते हैं वो लोग, कोई उनका उनका वो अंबिया पहले से ही है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। क्या नबी ने क्या बुत पूजा की? क्या नबी ने नंगा तवाफ किया? किया बोलिए। होगा, किया होगा। नहीं किया, नहीं किया। कहाँ पे लिखा है कि नबी ने कभी नंगा तवाफ आप नहीं किया? बताओ ना कहाँ पे, आप बताओ ना नंगा तवाफ किया कहाँ पे लिखा है, आप बेहतरीन, मैं बताओ। बताया तो, क्या नबी ने जिस वक्त वो अभी उसको नहीं मिला था प्रोफेसी। 40 प्रोफेसी, उससे पहले तवाफ हम्म। नहीं किया था खाना काबा का? नहीं किया था, नंगा तवाफ किया नहीं था। किया था, बोलो। नंगा की बात ही नहीं नहीं कर रहा किया। भाई, मैंने क्या नंगा कर रहा था? मैंने पूछा है क्या उसने उससे पहले खाना काबा का तवाफ नहीं किया था? लेकिन जो हमारा क्लेम है कि नंगा अरे तवाफ शफी, ये एक। शफी, शफी, हम्म। सवाल का जवाब उस तक, सवाल का जवाब हाँ तो सवाल के जवाब तक किया था ना? ओके, किया होगा वो तो। बेहतरीन। सैयदना इब्राहिम, हाँ, अब सैयदना इब्राहिम का मोहम्मद, ट्रेडिशन। अरे चुप चुप, इब्राहिम तक ना पढ़। अब जो मोहम्मद ने जब उस वक्त तवाफ किया, सब लोग नंगे कर रहे थे, मोहम्मद वाहिद था जो कपड़े पहन के करता था, तो किसी भी बंदे ने क्यों नहीं लिखा कि मोहम्मद जब भी खाना काबा में जाता था वो कपड़े पहन के जाता था? लेकिन ये जरूर लिखा है कि मोहम्मद से पहले खाना काबा का नंगा तवाफ होता था। लेकिन किसी एक भी बंदे ने नहीं लिखा कि मोहम्मद जब भी पहले कभी खाना काबा में गया था वो कपड़े पहन के जाता था। क्यों नहीं लिखा? हर चीज थोड़ी नोट, वो तो नोटिसेबल है, तो कॉमन सेंस है। कॉमन कॉमन सेंस सेंस तो तो नहीं है, अनकॉमन कॉमन हो गया सेंस क्या? कैसे? कॉमन सेंस ये है कि जिस तरह के सारे लोग काम कर रहे हैं उसी तरह का दूसरा बंदा भी करेगा, और कर रहा था। हाँ कॉमन तो सेंस तो मुझे ये होती है। बताओ। अब उस कॉमन सेंस को अनकॉमन करने के लिए स्पेशली लिखा जाना चाहिए था किसी ना किसी हदीस में, कुतुब सित्ता की, कि मोहम्मद जी हाँ जब भी तवाफे काबा करने गया वो कपड़ों के साथ गया 40 साल से पहले। कहीं पे लिखा है ऐसा? भैया हम तो ये बता रहे हैं ना, जब जो भी जाहिलियत के काम थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किए हैं। तो कुरान कहता है मोहम्मद ने किए। कुरान कहता है कि किधर है? मोहम्मद ववजद का जालन फहदाया, मोहम्मद गुमराही में था, लॉस था, हमने उसे हिदायत दी। गुब्राई में था, किधर लिखे है? बताता रहा हूँ, कुरान में लिखा है ववजद का जालन फहदाया। क्या मतलब है इसका? अच्छा उसका क्या मतलब है? इतना साल, एक आयत ऐसी है कि इतना साल मैंने तुम्हारे में गुजारे हैं। हाँ तो मैं किस टाइप का इंसान था आपको तो मालूम है कि मुझे अगर वो नहीं पता गलत सर, इंसान रहता मुझे नहीं पता। तो राइट। कुरान कहता नहीं है, नहीं, उनका कुरान कहता है। उनका जो उनका अरे टाइटल शफी, अमीन था। शफी, हम्म। अमीन ईमानदार होता है। इट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स। कुरान बोल व्हाट रहा है नथिंग कि यार। मोहम्मद तुम जो थे, तुम गुमराही में थे, मैंने तुम्हें हिदायत दी। तो मुझे बताओ कुरान सच्चा है या तुम? मोहम्मद गुमराही में थे? बताओ गुमराही वाले काम क्या किए? भाई अल्लाह से पूछना जिसने कुरान में सिर्फ ये बता दिया कि तुम गुमराही में थे। अच्छा नहीं नहीं, बताओ ना, भूत भूत गिरा है, कब गिरा है? जब उनको ऑर्डर आएगा नबूवत आने तब के भूत बाद, गिरा है ना। नबूवत आने के बाद ना, तो उससे पहले बुतों की पूजा कर रहा था ना फिर वो। नहीं कर रहे थे ना, आप कहीं अल्लाह रॉन्ग कह रहा है, कॉन्सेप्ट है। अगर मोहम्मद दीन इब्राहिमी पे था, तो फिर अल्लाह से ये क्यों कह रहा है कि तू गुमराह था? अल्लाह पागल क्या तुम? हाँ भाई जी। दीन वजह इब्राहिम का पे था जो। वजह का जालन फहदाया, और तुम गुमराह थे, हमने तुम्हें हिदायत दी। सिंपल सवाल है कि अगर वो दीन इब्राहिमी पे था तो फिर गुमराह तो नहीं होना चाहिए था उसे?
तो दीन इब्राहिम में था जो उधर वो जो जाहिलियत में जो उनका काम होता था, जिंदा लड़की को दफनाते, नंगा तवाफ करते, तो क्या नंगा मोहम्मद की तवाफ कितनी नंगा तवाफ मोहम्मद ने नहीं किया, कैसे हो सकता है? मैंने दिखा दिया आपको, बता दिया कि भाईजान आप साबित कर देंगे नहीं किया, क्योंकि मोहम्मद ने मल्टीपल लोकेशन में लिखा हुआ है कि वो खाना काबा के अंदर जाता था, इवन खाना काबा उसने बनाया भी था, ठीक है। जिस वक्त उसने धोती उठा के अपने शोल्डर पे रखी थी, अलफ नंगा होके गिर गया था बेहोश होके। तो मोहम्मद अगर वाहिद बंदा था जो कपड़े पहन के जाता था, तो किसी ना किसी हदीस में तो लिखा होना चाहिए था, किसी में नहीं लिखा। इट मीन्स आप कि तो जितनी दफा वो करता था, चुप करके सुन लो, इट मीन्स जितनी दफा वो तवाफ करता था नंगा ही करता था। नाउ अब कुरान झूठ बोल रहा है कि वो गुमराह था और अल्लाह ने उसे हिदायत दी, या आप झूठ बोल रहे हो कि वो हमेशा से दीन इब्राहिमी पे था? अरे भाई, उनको नबूवत जो शक्के का जो उनका जो दिल चीरा गया, ये किया गया, शफी, उनको तो वो अब 40 साल के बाद है, मैं 40 से पहले की बात कर रहा हूँ, दोबारा टेंटे नहीं सुना, करो। वो तो बचपन से ही उनको अपडेट करते शफी, जा रहे हैं मैंने जो। मैंने सुनो सबसे सुनो, पहले, शट अप, मैंने सबसे पहले तुम्हें इसीलिए इस चीज पे सेट किया था कि जो सवाल है उसका जवाब दो। तुम्हारा हाल क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जवाब नहीं है। सो डोंट गिव मी अनदर बुलशिट। मुझे आपने अब दिखाना है और बताना है, मुझे जलेबी नहीं सुनना आपसे। जी, मुद्दे पे आए। मुझे ये बताएं कि क्या अल्लाह झूठ बोल रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो? ये बताएं। मुझे ये बताओ, जो अंबिया का जो पैदावास है ऑलरेडी, जो उनका ऑलरेडी जो भी इंसान दुनिया में आता है ऑलरेडी उसको स्टैम्प लगा हुआ है, अंबे को भी स्टैम्प लगा हुआ है, कुरान की एक आयत से साबित मैंने होता है। जो पूछा है उसका जवाब दो। अल्लाह यहाँ पे झूठ बोल रहा है कि अंबिया तू गुमराह था? अंबिया अंबिया गुमराह नहीं रहते, बचपन से लिखा हुआ लेके है बचपन कुरान, तक। ओके कुरान झूठा है, ओके फेयर इनफ। लो अब जी सब बताओ लोगों, आयत नंबर अकॉर्डिंग टू शफी साहब, कुरान झूठ बोल रहा है, कुत्ती किताब है, इसे जला दो, कचरे में फेंक दो। आजकल के मुसलमान अब कुरान को भी नहीं मानते। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह झूठा है। अली भाई, साजिद भाई, कोई बात रह गई अब इनसे मजीद करने की? नहीं जी। जो केला छीलना है वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिशन है। इनको नहीं पता कि मोहम्मद का हुआ था या नहीं हुआ था, या अल्लाह ने करके दिया था। इनको नहीं पता कि मोहम्मद ने किसी हदीस में कहा है कि कर लो खतना, और क्यों करो, इनको नहीं पता। कुरान में, कुरान के मुताबिक नबी गुमराह था। ये जनाब अपनी तमीद दे रहे हैं कि नहीं जी नबी गुमराह नहीं था, इनके मुताबिक कुरान कचरे में फेंकने वाली किताब है। अब ये तीनों बातें इनके साथ पूरी हो चुकी हैं, मजीद कोई बात रहती है? गए शफी? अच्छा, अरे गए वो तो बेचारे। नहीं नहीं गए नहीं है यहीं पे, अच्छा यहीं है पे है। नहीं, इनकी मैं ही कह तक रहा हूँ, इनको बस वो एक बात याद है, वो जो उनके मौलवी साहब ने इनको बताई हुई है ना, मेडिकल बेनिफिट्स वाली, इसके बहुत फायदे हैं, इसके बहुत फायदे हैं। तो इनको हदीस भी नहीं पता कि कौन सी हदीस में है, इनको कुरान में भी नहीं पता कुरान में कहाँ है खतना का चक्कर। इनको ये भी नहीं पता कि उन्होंने खतना की अपनी या नहीं की, अल्लाह ताला ने भेजी खतना करके, नहीं, कुछ नहीं पता। बस इनको इतना पता है वो जो मौलवी ने बेनिफिट्स इनको बताए हुए हैं ना, झूठे अली, मेडिकल बेनिफिट्स। हाँ अली मेडिकल बेनिफिट हो या ना हो, इट डजंट मैटर। क्यों? क्योंकि जो दीन धर्म होता है ना, मेडिकल बेनिफिट्स के ऊपर नहीं लिखा जाता, उसकी वैल्यू कुछ और बिल्कुल। होती है, ठीक है। मैंने इनको यही कहा था कि आपने अपने बच्चे की खतना इसलिए कराई थी कि डॉक्टर ने कहा था आपको, आप क्या है वो मेडिकल बेनिफिट बीच में ला रहे हो, होते भी हैं एग्जैक्टली। तो आपके उस क्या मतलब, उस आपको क्या मतलब उससे भाई। अगर मेडिकल बेनिफिट भी थे तो मोहम्मद को डिफाइन करने चाहिए थे कि इन मेडिकल बेनिफिट्स की वजह से कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे दिस इज स्टुपिडिटी। है ना, तो पेशाब पीने से पेट की बीमारियां खत्म हो रही हैं। देखो ये बेनिफिट समझ में आ रहा है पेशाब पीने का, बीमारी के साथ बताया गया कि कौन सी बीमारी का इलाज है इस पेशाब में। तो इसका भी बीमारी बताते और फिर इसका इलाज बताते कि किस बीमारी का इलाज है भाई खतने में। एग्जैक्टली। सो शफी इज द एंड हो चुका है, कुरान भी आज जो है ना जाया हो चुका है, जलील हो चुका है, एंड दैट्स द एंड ऑफ द डे आई थिंक। क्योंकि वो खतना जोड़ने की बात है, इसलिए हम लोग वही बात कर रहे थे लाला जी। अगर दूसरे की खतना दूसरे में जोड़ दी जाए तब क्या होगा, क्योंकि वो जुड़ना नहीं, तो है। हाँ, और या कोई अल्लाह भैया फरिश्ता एक फरमाता ऐसा होगा। है कि एंड में तुम लोगों के मैं खतने जोड़ दूंगा। ओए क्या बात पकड़ी यार आप लोग, कहाँ से बात पकड़ते हो यार? अरे लाला जी, आप लोग आपसे सीख रहे हैं यार, आप तो वल्लाही शागिर्द हैं, तो कमाल किस बात है तरफ से आपका जोड़े। सर। कहाँ कहाँ से बात लाते हो यार, कहाँ कहाँ से बात लाते हो? बिल्कुल, जब ये हदीस है कि बिन खतना मिलोगे आप और खुदा से, तो फिर बात तो बनती है। अच्छा वैसे नंगे क्यों मिलोगे, मुझे ये समझ नहीं आती। हदीस के मुताबिक तुम बिन खतना मिलोगे और नंगे मिलोगे, वाई? वाई? अल्लाह को क्या नंगपुना बहुत पसंद है? लाइक हाउ स्टूपिड इट इज कि
क़यामत के दिन तुम अपने रब को मिलोगे नंगे बिन खतना। क्यों भाई? वाई? नंगा मिलना क्यों जरूरी है? उस वक्त कपड़े क्यों नहीं दे सकता था अल्लाह? क्या सब कुछ कर देगा, कपड़े नहीं देगा? क्यों भाई? अच्छा, अल्लाह प्रॉब्लम क्या है तुझे? हूरों को 70 दे दिए, हमारे को नंगा रखा हुआ है। भाई 70 भी कैसे दिए हैं कि उसमें से सब कुछ नजर आ रहा है? सी थ्रू कपड़े हैं, फायदा 70 अच्छा, दे दो या नंगापन 500 वहां दे पे दो, भी है। है तो सी थ्रू ही है ना। वो 70 दे दो या 500 दे दो, क्या फर्क पड़ता है? फिर ऐसा भी है ना, अपनी इस बीवी से आप सोहबत करें तो आप उसको खतनाशुदा मख्तून रहें तब करें, ताकि आप मुकम्मल लज्जत ना पाए दुनिया की। लेकिन आप जब मेरी जन्नत में कदम रखें और बहिश्त में आए तो 70 हूरों के साथ आपको अगर प्यार करना है तो फिर आपका खतना हम जोड़ देंगे। तो कोई एक फरिश्ता ऐसा होगा लाला जी जो सबके खतनाशुदा जो उज़्व कटा है उसको किसी प्लास्टिक वगैरह में लपेट करके नाम लिख करके रखा होगा कि ये साजिद का है, ये एडम का है, ये मुन्ना का है, ये अली का है, वरना पता किसी का नहीं किसी में सर, जोड़ दे। पता नहीं किसका क्या लिखा हुआ है इन्होंने, समझ तो आती नहीं इनको। अल्लाह भी नंगा रखेगा भाई? क्यों? मुझे ये उस हदीस में मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि खतना जोड़ा होगा, उस हदीस जी। में ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह नंगा क्यों रखेगा? You हम्म। understand एडम what भाई, I'm saying? मुझे हम्म? लग रहा है ना नंगा करने का अल्लाह का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो नंगे रहेंगे और जिनका खतना हुआ रहेगा तो मोमिन्स अल्लाह को पहचानने में आसानी होगी कि मोमिन्स और नॉन मोमिन्स कौन से हैं। अरे नहीं, अल्लाह ने सबका खतना वापस जोड़ देना ना, तो उस वक्त नॉन मोमिन मोमिन सब एक ही हो चुके हैं ना। प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त नंगे क्यों है भाई? लड़कियां भी नंगी, तुम अपनी बहन के साथ हो गए, तुम अपने भाई के साथ हो, तुम अपने भाई को नंगा देख रहे हो, बहन को नंगा देख रहे हो, माँ को नंगा देख रहे हो, क्यों भाई? अरे नहीं, नफ्स नफ्सी का आलम होगा, किसे पता नहीं होगा। अबे फिर भी होगी तेरी बहन ना तेरे साथ नंगी, अलफ नंगी, तेरी माँ अलफ नंगी, क्यों हाँ, होगी भाई? ये तो आयशा ने पूछा था कि हुजूर हम नंगे होंगे और पसीने में शराबर होंगे, क्या हमें शर्म हया नहीं आएगी? नबी कह रहे हैं कि तुम्हारा उस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा कि तुम हाँ, ना नंगे जाए हो। ध्यान, लेकिन होगे तो नंगे ना। ध्यान ना बिल्कुल। जाना हैज नथिंग टू डू विद बीइंग नंगा। होगे तो नंगे ना, चाहे ध्यान ना जाए। मैं यही तो कह रहा हूँ, ध्यान का जाना या ना जाना इज सेकेंडरी। हम्म। अल्लाह ने ये नंगपुना रखा क्यों भाई? यानी मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी मेरे साथ नंगी खड़ी है, क्यों भाई? क्यों? वाई वाई वाई? अल्लाह कपड़े क्यों नहीं दे सकता था? सिलाई मशीन नहीं होगी अल्लाह मियाँ के पास ना, कपड़े सिलेगा सिलाई कहाँ मशीन से? है ना, हूरों को दिए है ना, वो भी सेक्सी कपड़े दिए हैं, सी थ्रू। वो जो होता नहीं सफेद हाँ वो भी। कॉटन के कपड़े में कोई लड़की को गीला कर दो ना, तो जिस तरह के कपड़े लड़की के बनेंगे ना, वैसे कपड़े देगा अल्लाह। हाँ बिल्कुल। क्यों भाई? हूरुल क्यों? आइन वाई वाई देगा, वाई? बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें, और जिसके बदन इस तरीके से होंगे वो कपड़े पहने रहेंगी, हालांकि ऐसा लगेगा कि वो कपड़े नहीं पहनी है। वो भी 70 जोड़े। जी। उनकी अच्छा। चुंदड़ियां 70 हो, पहनी। 80 हो, 150 हो, बात अच्छा। ये है कि क्यों? अच्छा एडम भाई, यहाँ पे तो नबी का सामान मुबारक किसी ने नहीं देखा था, लेकिन आखिरत में तो नबी भी नंगे होंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ सब कितना नंगे, भी। अलफ नंगे, अरे अलफ नंगे लेकिन वहाँ सब, कितने कितने लोग अंधे हो जाएंगे नबी का सामान दिख जाएगा तो। सब सब। सब अंधे। दूसरी बात ये, कोई हदीस ऐसी आप लोगों की नजर से गुजरी है कि जिसमें कोई ऐसा कोई बयान हो नबी का, हदीस कोई, कि जिसमें कहा गया हो कि मेरी बीवियां जो हैं वो हिसाब किताब से मुबर्रा हैं या हिसाब किताब से फारिग हैं और ये डायरेक्ट जन्नत की बशारत तो वो जिन सहाबियों को है उसमें नबी की बीवियां तो नहीं आती मेरे ख्याल से, तो ये नबी की बीवियां भी हशर में मौजूद होंगी, हशर बिल्कुल के मैदान में, बिल्कुल क्योंकि हिसाब किताब तो होना है। वो तो नबी की बिल्कुल। बीवियां जो डायरेक्ट जन्नत चले गए हैं लोग, उनका नाम तो अलग आया ना, क्योंकि उनमें तो बीवियां, यार कितनी गंदी बात है यार ये, मेरे अजी को नहीं भाई, देखनी एक भाई हदीस उनकी बीवियां। मेरी नजर से गुजरी थी कुछ रोज कबले, जिसमें है कि नबी ने अपनी बेटी फातिमा से कहा था कि फातिमा तुम इस फिक्र में ना रहना कि तुम नबी की बेटी हो, मोहम्मद अरबी की बेटी हो, इसलिए बख्श दी जाओगी, बल्कि जी, तुमसे भी हिसाब किताब होगा, तुम अपने अमाल का जायजा लेना। अब मैं क्या बोलूं कि जिस सहाबी का नाम उस लिस्ट में है, दूसरा नाम जिस सहाबी का उस लिस्ट में है, अब मेरा शिया बायस आपको दिखेगा यहाँ पे, लेकिन उसको जन्नत की बशारत दी जा रही है जब वो माल डोनेट कर रहे हैं नबी के लिए। माल डोनेट करने पे जन्नत की बशारत दी जा रही है, लेकिन अपनी बेटी को जन्नत नहीं ले जा सकता है नबी। लख दी लानत है ऐसे नबी पे। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो हदीस है ना कि जब हजरत अली को दरवाजे पे खड़ा किया और कहा कि जो भी इस दरवाजे से सबसे पहले गुजरे उसको जन्नत की बशारत दे दो, तो अबू बकर आए, उसके बाद कई एक साहब अशरा मुबशरा जो हैं जी, वो वही बात 10 कर रहा हूँ मैं भी, सहाबा अशरा जो हैं। मुबशरा के साहबियों की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। जी बिल्कुल, 10 सहाबे को तो जन्नत की बशारत दी गई है,
اور ایک موقع پر تو نبی نے یہ بھی کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت عمر نے تو ایک مکہ مارا تھا شاید ابن عباس کو، اور نبی کے پاس لے کر آئے کہ آپ نے جنت کو اتنی سستی کیوں کر دی۔ اس طریقے سے لوگوں کو مت بتائیے، ورنہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے پھر، اور صرف لا الہ الا اللہ پر اکتفا کر لیں گے۔ بات یہ ہے کہ نیکڈنس بری ہے، ٹھیک ہے۔ آدم نے جب گیم خراب کی اپنی تو اس کو سب سے پہلے ننگا پنا نظر آیا، ٹھیک ہے، اور نیکڈنس ہے بری۔ اگر تو اسلام یہ کہتا کہ ہم لوگ جنت میں جا کے فرشتوں کی طرح ہو جائیں گے اور ہم سیکس وکس نہیں کریں گے تو پھر نیکڈنس کا ٹینشن نہ تھا کہ یار جانور بھی تو ننگے ہوتے ہیں نا۔ جب سیکس کی تمنا نہیں ہے اور اس کی فیلنگز نہیں ہے تو پھر نیکڈ ہونے کی ٹینشن بھی نہیں ہونی چاہیے، فیئر انف۔ لیکن اسلام ایسا نہیں کہتا، اسلام آپ کو بڑے بڑے گول گول بوبیز والی لڑکیاں دکھاتا ہے جنت میں۔ اس کا مطلب ہے فیمیل کو دیکھ کے سیکس کا پھڑکنا اور آپ کے پرائیویٹ پارٹ کا کھڑا ہونا، جنت کے اندر یہ تمام فیلنگز موجود ہیں۔ جب یہ تمام فیلنگز موجود ہیں تو اللہ کے سامنے ننگا کھڑے ہونے کی مجھے لاجک کوئی مسلمان سمجھا دے، انسرکمسائز وہ بعد میں دیکھ لیں گے، نیکڈ کھڑے ہونے کی پہلے مجھے بتائیں، لاجک سمجھائیں اس کی۔ یہاں تو مجھے کہو کہ جنت میں کوئی سیکس وکس نہیں ہے، لیکن جنت میں سیکس ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی بڑی بوبویز اور یہ وہ اور ورجن اور وغیرہ وغیرہ جو سب کچھ لکھا ہے وہ سب کچھ اللہ نے بتایا ہے، تو یہ پھر نیکڈ کیوں ہے بھائی تو؟ ایڈم بھائی کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ خود بھی شہوت رکھتا ہے؟ ایبسلیوٹلی، ہی از واچنگ ہز پورنوگرافی۔ ایگزیکٹلی، پھر یہی سینس بنتا ہے نا کہ ایک او بھائی ٹھیک بات ہے بھائی، پھر تو کہ اس بنانے اللہ والے کے ٹرکی ہے، اندر شہوت موجود ہے۔ اللہ واہ، ٹرکی ہے۔ اس سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، جب اگر اللہ شیطان نے بہکا دیا آدم کو منع کیا تھا خدا نے کہ اس درخت کے قریب مت جرنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تو شیطان نے بہکا دیا فَأَزَّلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبِ اللَّهِ۔ تو اللہ نے آدم کو جب سب سے پہلے زمین پہ اتار دیا، جنت سے نکال دیا، کپڑا بھی چھین لیا، بالکل الف ننگا۔ گڈ پوائنٹ۔ اب مجھے کوئی بتائے ہے کوئی مسلم؟ یار کوئی مسلم بھائی سن رہے ہیں تو یار آ کر کے اپنے اسلام کا دفاع کر دیں، آپ کا اسلام بہت زبردست گڑھے میں جا رہا ہے۔ نہیں تو اب تباہ ہو رہا، بالکل اب تباہ ہو رہا ہے۔ اب پہلے گڑھے میں تو جا چکا تھا، جب سے سوشل میڈیا آیا ہے وہ بالکل گڑھے میں جا رہا تھا، اب اوپر مٹی ڈالنا باقی تھا، وہ بھی پڑ چکی ہے۔ آپ آئیں ذرا اس کا سر باہر نکالیں، شاید پھر سے زندہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جنازہ پڑھایا جا چکا ہے، بس تدفین کی ایک رسم ہے جو باقی ہے بس۔ ہاں، اور یہ 7 دن ایڈم بھائی 7 دن کا بچہ 10 دن کا بچہ جس کا ختنہ ہو رہا ہے وہ 40 سال کا ہو جائے گا اوپر جا کے، تو اتنی چھوٹی سی اسکن کیسے لگے گی اس پہ؟ یار اب وہ لگا دے گا نا اللہ دوبارہ سے، اسی لیے اللہ کہتا ہے نا کہ دوبارہ ریکریٹ کرے گا اور پہلے سے بہتر کریشن کرے گا۔ اللہ فرسٹ ٹائم میں اللہ کی کریشن صحیح نہیں ہے، سیکنڈ ٹائم میں صحیح ہوگی۔ قرآن کی آیت ہے یہ، جب وہ ریکریٹ کرے گا تو زیادہ بہتر ریکریٹ کرے گا۔ پتہ نہیں ہے آپ کو اس کا؟ نہیں وہ نہیں دھیان میں تھا۔ قرآن میں یار ایوولوشن ہے قرآن میں حامد بھائی۔ نہ اللہ جب ریکریٹ کرے گا، اللہ کہتا ہے کہ میرے لیے دوسری دفعہ تخلیق کرنا زیادہ آسان ہے۔ یار آپ لوگ یار سمجھتے نہیں بات کو، نکل آتے رات کو۔ یہ لو لیکن لالا جی پہلی دفعہ جو تخلیق کیا اللہ نے وہ مشکل تو تھا، اس میں قرآن مشکل 40 میں تھا۔ کہہ رہا نا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ۔ یہ دیکھیں اللہ نے جب پہلی دفعہ تخلیق کیا تھا تو اللہ کو بڑی ٹینشن ہوئی تھی۔ اللہ کہتا ہے جب میں دوسری دفعہ تخلیق کروں گا تو زیادہ بہتر کروں گا اور آسانی سے کروں گا۔ پڑھیے ساجد بھائی، آپ پڑھتے ہیں بڑی خوبصورتی سے پڑھتے ہیں۔ اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير۔ ہائے کیا بات ہے، واہ۔ ساجد بھائی ایک سوال ہے آپ سے، آپ ابھی تک سجدوں پہ سجدہ کرتے ہیں؟ نہیں، میں نے کبھی سجدہ نہیں کیا۔
अच्छा, कभी नहीं किया। मैंने भी नहीं किया सजदों पे सजदा। हाँ, अच्छा, अब प्रॉब्लम कभी ये है नहीं कि किया। आप दोबारा जब अल्लाह दोबारा करेगा तो उसके लिए आसान है। पहली दफा उसने किया मुश्किल था, गलत तख्लीक कर दी उसने, 2 नंबर तख्लीक कर दी। दूसरी दफा करेगा सही करेगा। हाय, इस पे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया लाला जी, कहाँ से ढूंढ कर निकाला आपने? क्या देखते नहीं? क्यों कर शुरू करता है अल्लाह पैदाइश को, फिर उसको दोहराएगा, ये अल्लाह पर आसान है। इट्स इजी फॉर असरार अहमद अल्लाह। साहब का तो और जबरदस्त है कि आपने नहीं देखा किस तरह अल्लाह पहली बार पैदा करता है फिर उसे दोबारा पैदा करेगा। यकीनन ये अल्लाह पर बहुत आसान है। ठीक हो गया। तो ये सेकंड तख्लीक अल्लाह दोबारा करेगा। तो आप लोगों को समझना चाहिए ये बात कि अल्लाह जो है वो गेम सही नहीं कर सका फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में सही करेगा। सेकंड टाइम में करेगा तो ये अल्लाह पे आसान है। फर्स्ट टाइम में उसने गेम खराब कर दी है। सॉरी, टाटा बाय बाय। मुझे डर है यार, ये पहली दफा गेम शैतान ने खराब कर दी थी, अब ये दूसरी दफा कोई और खराब ना कर दे अल्लाह की गेम। लेकिन मेन पॉइंट लाला जी का ये था कि तुम लोग खतने पर इतना फोकस क्यों हो, उससे ज्यादा तो नेक्ड पर होना चाहिए कि यार वो नंगा है और उस पे नहीं हो। अफसोस का मकाम है मोहम्मद कि नंगा, एक उसकी भाई सारी अपनी बहन बीवियां के नंगी। सामने है, एक माँ है अपने बेटे के सामने है, और फिर वहां कैरी ऑन पे साजिद लाते भाई। हैं कि ये नफसी नफसी का आलम होगा। जी लाला जी आप बताएं। नहीं नहीं, मैंने कहा कैरी ऑन सर, कैरी ऑन, सॉरी। जी, वहां बताते हैं कि नफसी नफसी जबू गहरी का आलम होगा, सबको अपने अपने नफ्स की पड़ी रहेगी, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं रहेगा। माँ बेटे को नहीं पहचानेगी, शौहर बीवी को नहीं पहचानेगा, सबसे इनकार कर देगा। अरे भाई, तो अपनी बीवी को नहीं पहचानेंगे ना, किसी की बीवी को पहचान लिया फिर। नहीं, ऐसा थोड़ी जहां है पे किसी की पसीना बीवी को नहीं पहचानेंगे। आपकी नाक तक रहे अली भाई, जहां पे कांधे तक रहे, कि किसी के सर पे रहेगा, कोई पसीने में पूरा डूबा रहेगा, जहां पे सूरज आपके सर के ऊपर रहेगा, खौलता रहेगा आपका सर। लेकिन यहाँ वहां पे सूरज कितना बड़ा रहेगा लाला जी? एक शख्स के सर के नीचे सूरज रहेगा, फिर जितनी उसकी बुराइयां रहेंगी उतना नीचे आता रहेगा सूरज, और जितनी उसकी अच्छाइयां रहती रहेंगी, कोई अगर नेक और साले है तो सूरज उससे उतना ऊपर रहेगा। यार कितनी कितनी फासले पर इंसान खड़ा होगा, ये तो समझने से कासिर है। पूरी पूरी एक दुनिया चाहिए एक आदमी को खड़ा होने के लिए। यार अल्लाह के मुताबिक सूरज बहुत छोटी सी चीज है यार। प्लीज फॉर द लव ऑफ गॉड समझो इस बात को। जब वो उसको अपने तख्त के नीचे ले जा रहा है, सजदे करा रहा है और उसको वो डाल रहा है उसके अंदर काले पानी के अंदर, तो यार खुद ही सोचो ना कि इट्स अ स्मॉल थिंग। अल्लाह के मुताबिक सूरज छोटा सा है, जमीन से देखने में छोटा ही लगता है। तो अल्लाह हर की बहुत इंसान छोटी चीज है। हर इंसान के नहीं, लिए एक अलग एक सूरज तरफ बना देगा ये वो। कह भी सकते हैं ना कि अर्श बहुत बड़ा है और सूरज उसके आगे काफी छोटा है, तो लेकिन जमीन पे इंसान के सूरज आगे उगने, बता। जमीन पे सूरज उगने की जगह है ना। तो जमीन से तो छोटा हुआ ना। उगता है, यस, डूबता है, आराम करता है, वो आराम करने के लिए भी उसको एक जगह चाहिए। हाँ, अल्लाह मियाँ के पास जाता है आराम करने के लिए। आराम अल्लाह मियाँ के तख्त के नीचे जाके आराम करता है सूरज। तो मेरे साजिद भाई, आप असल में थक जाता है साइंस ना को बीच में मिलाते हैं। साइंस को मत मिलाया करें। कुरान और इन लॉजिक्स को पढ़ते वक्त साइंस से दूर रहें। साइंस को अच्छा। कुरान से दूर रखें, वजारत सेहत। हाँ, वजारत सेहत। हाँ, वो होता है ना ये दवाइयों के पीछे मुजरे लिखा सेहत होता है। है, ये दवाई बच्चों की पहुंच से दूर रखें, वजारत सेहत। तो सिगरेट के साइंस को डब्बे के कुरान पीछे से भी ये लिखा दूर रखें, वजारत सेहत। है। जी। हाँ, इंजीनियर्स फॉर हेल्थ। हाँ, इंजूरियस फॉर हेल्थ। जी। ये देखें जी, आपको दिखा देते हैं। ये सही बुखारी में लिखा हुआ है, बुखारी में भी लिखा है, मुस्लिम में भी लिखा है, इब्न साई में भी लिखा है, बहुत जगह लिखा है। अल्लाह मैसेंजर डिलीवर्ड अ सरमन, उन्होंने खुतबा दिया। एंड सेड ऑल पीपल, लोगो, यू विल बी गैदर्ड बिफोर अल्लाह, तुम अल्लाह के सामने खड़े किए जाओगे, नंगे पैर, बेयरफुट, नेकेड, अलफ नंगे, एंड अनसर्कमसाइज, और तुम्हारा वो सरकमसाइज नहीं होगा, खतरा नहीं होगा। Then Allah Messenger now quoted the Quran and said, as we began the first creation, we shall repeat it. जैसा कि हमने पहली क्रिएशन क्रिएट की थी, उसके बाद हम रिपीट करेंगे 21 की 104। ठीक है, और हम रिपीट करेंगे। ठीक है, a promise we shall undertake, truly we shall do it. The prophet then said, the first of the human beings to be dressed on the day of resurrection will be Adam. सबसे अब्राहिम, सॉरी, सबसे पहले जिसको कपड़े पहनाए जाएंगे वो होगा इब्राहिम। सबसे पहले इब्राहिम को कपड़े पहनाए जाएंगे। मोहम्मद अभी तक अलिफ नंगा है, मोहम्मद की बीवी अलिफ नंगी है, इब्राहिम को कपड़े बना दिए, अब वो अलिफ नंगा नहीं रहा। लो, some men from my followers will be brought अलिफ नंगे, and the angels will drive them to the left hellfire.
کچھ لوگ جو میرے قوم کے ہوں گے لایا جائے گا اور لوگوں کو ہیل فائر کی طرف پھینک دیں گے وہ. آئی ول سے اے میرے رب الف ننگا ہوں میں, مائی کمپینینز ہیں یہ, دین آئی رپلائی ول کم, یو ڈو ناٹ نو وٹ دے ڈیڈ آفٹر یو, تم نہیں جانتے تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا. آئی ول سے ایز دا پائس سلیو, اللہ کے مکمل طور پہ کمپلیٹ غلام ہونے کے طور پہ, said I was a witness over them while I dwelt among them, میں ان کا پر witness تھا جب تک میں ان کے پاس تھا. when you took up me up you were the watcher over them, you are a witness of all things, then it will be said these people have continued to be apostate since you left them. جہنم میں سڑو مرتدو. جہنم میں سڑو. اچھا لالا جی, اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ آپ نے کہا کہ سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ کو کپڑا پہنایا جائے گا, یعنی جو محبوب ہے اس کو پہلے کپڑا نہیں دیا جائے گا, جو دوست ہے پہلے دوست کو کپڑا پہنایا جائے گا. محبوب اسی طرح اپنی بیٹی فاطمہ کے سامنے, اپنے نواسے حسنین کے سامنے, یعنی کہتے ہیں کہ نبی اتنے حیا اور شرم والے تھے کہ کسی دلہن سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے. اللہ نے شرم حیا کی واٹ لگا دینی ہے بھائی, شرم حیا کی واٹ لگائے گا اللہ اس وقت. کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے, اور وہ اپنی بیٹی, اپنے نواسوں, اپنے دامادوں سب کے سامنے, اور یہاں تک کہ امت کی ساری امت کی نظر ان پر پڑی ہوگی, عربوں کی نظر, اور وہ اپنے کے ساتھ ایسے ہی ننگے کھڑے رہیں گے. ہائے نفسی نفسی, لائن بنا کے کھڑے ہوں گے سب کا, جب واپس لگ رہی ہوں گی ختنہ ہے. نہیں ختنے لگ گئی, کپڑے بنانے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. سب الف ننگے کھڑے ہیں, اللہ میاں کہہ رہا ہے آ بھی ابراہیم آ تجھے میں کپڑے دوں. سب سے پہلے ابراہیم کو کپڑے دیں گے, سب دیکھیں گے ماشاء اللہ ابراہیم. ابراہیم کا تو بڑا زبردست جسم تھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کوئی اس میں خرابی نہیں تھی, اس میں کوئی ہرنیا نہیں تھا. سب دیکھ رہے ہوں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ ابراہیم ہے. یار کیا یہودی بکواس کامیاب ہے, رہ گئے, یہودی کامیاب رہ گئے اس میں. ہاں بٹ لائک ڈوڈ وٹ از دیٹ بکواس, ڈو یو ایون تھنک کہ انہوں نے کیا لکھا یار, کیا بکواس کیا ہے یہ, کیا بکواس کیا ہے. ننگے پن کا شوقین ہے, بس ننگے پن کا شوقین, کسی طرح ننگ پنا دکھ جائے. بہت عرصہ ہو گیا انسانوں کو ننگا نہیں دیکھا اللہ نے, سب کو سامنے کھڑا کر کے ننگا دیکھے گا پوری انسانیت کو. الف ننگا آپ ہی دکھلا دیں, ہم کو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. کیا آپ کا کوشچن کیا ہے؟ یہ اللہ اتنا ننگ پنا کیوں دکھا رہا ہے اللہ؟ سر اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے اکارڈنگ ٹو محمد صاحب کے خطبے کے؟ نماز کے ٹائم. نماز کے ٹائم جو محمد صاحب نے بھی خطبہ دیا ہے اور جو ہائی لائٹڈ پارٹ ہے محمد صاحب بتا رہے ہیں, اے لوگو یا ایھا الانسان, تم لوگ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے آخرت میں, تم کو اللہ میاں ننگا کر کے کھڑا کرے گا, الف ننگا, اور تمہارا جو خطرہ والا پارٹ ہے وہ بھی واپس جوڑ دے گا اور پھر کھڑا کرے گا. یہ الف ننگا کیوں کھڑا کرے گا؟ آپ آگے پڑھ رہے ہیں سر, وہ بعد میں پڑھ لیجیے گا, جو اوپر والا پارٹ پڑھ لیں, پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ پارٹ پہ بھی چلیں گے. For Allah barefooted, naked and not circumcised. جی سر کتنی دفعہ سوال ریپیٹ کروں اپنا؟ جی میں سمجھ چکا ہوں. جی سر حکم جواب دیجیے سر, اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو. جی سرنڈر. سرنڈر نہیں جواب دیجیے گا؟ ٹھیک ہے سر. I can understand English, that's why I have surrendered. بہترین سر. سو بیسیکلی بائی دس ڈیفینیشن اللہ میاں جو ہیں وہ نیکڈنیس پسند کرتے ہیں, ننگ پنا پسند کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں وہ ننگے لوگوں کو دیکھ کے. Is this the only kind of hadith or there are? پک اپ اینی حدیث کے ڈے آف ججمنٹ میں آپ اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے, اس میں یہ لکھا ہوگا کہ ننگے کھڑے ہوں گے. نہیں, میں عربی کے متن کو کاپی کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. ملٹیپل حدیثیں ہیں, یہ لیں پکڑیں, یہ بخاری کی ہے, میں آپ کو یہ عربی کے متن کو کاپی کر کے دکھا دیا. سنن نسائی 2087 کے اندر بھی یہی ہے, تم لوگ ننگے کھڑے ہوگے, ٹھیک ہے. صحیح بخاری 46-25 کے اندر بھی یہی ہے, تم لوگ ننگے کھڑے ہوگے اور تمہارے سرکمسائز بھی نہیں ہوا ہوگا. ترمذی 3166 کے اندر بھی ہے, تم لوگ کھڑے ہوگے ننگے
नंगे अनसर्कमसाइज्ड, नंगे और अनसर्कमसाइज्ड। मुस्नद अहमद के अंदर मुस्नद अहमद 16 के अंदर भी लिखा हुआ है कि तुम लोग अल्लाह के सामने नंगे खड़े होगे, ठीक है। सुना अभी दाऊद भी कह रही है और यू बिलीव फास्टिंग इज प्रिस्क्राइब, नहीं यहाँ पे चेंज हो गया, अब्सटेन ड्रिंकिंग इंटरकोर्स, ये जरा डिफरेंट, ये डिफरेंट चीज आ गई, ये उन्होंने मतन का सिर्फ कॉपी किया एक हल्का सा पार्ट। बहरहाल यू विल बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मल्टीपल जगह जगह पे, जब तुम अल्लाह के सामने खड़े होगे, नंगे होगे और अनसर्कमसाइज्ड होगे। सर मेरा सवाल ये है कि अल्लाह इतना नंगपना पसंद क्यों करता है सर? सर वो तो खुदा है ना, उसके सामने नंगे रहो कुछ भी रहो, लेकिन हम वो लोग भी तो खुदा। सारे के सारे खड़े हैं ना, आपकी बहन खड़ी है आपके साथ, आपका भाई खड़ा है आपके साथ, आपका बाप तो खड़ा है, सर आपकी माँ खड़ी है, मोहम्मद खड़ा है, वो भी नंगा अलिफ नंगा। एट दैट आप अपने मोमेंट ऑफ मोहम्मद की टाइम, बीवियां जो कि आपकी माएँ हैं, वो भी आपके साथ नंगी खड़ी हैं। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम हम किसी को पहचान नहीं पाएंगे ना। नहीं लेकिन नंगा तो देख पाएंगे ना। नहीं, अब बट जब अल्लाह मियाँ हमारा कह रहा है, इंसानी अल्लाह दिमाग मियाँ तो कह नहीं रहा रहेगा है, ना। हाँ अब ये देखे ना, द फर्स्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग टू बी ड्रेस्ड ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन विल बी अब्राहीम। अल्लाह मियाँ सबसे पहले अब्राहीम को कपड़े पहनाएगा, सब देख रहे हैं इब्राहिम को अल्लाह कपड़े पहना रहा है, अरे मैं तो नंगा हूँ, अब्राहीम को कपड़े मिल रहे हैं। अब हम लोग देख भी रहे हैं कि अब्राहीम को कपड़े मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कपड़ों की वैल्यू होगी, औकात होगी। और उसके अलावा अगर आप देखो तो कुरान और हदीस में ये है कि आपको बच्चियां मिलेंगी, हूरी जिसे आप कहते हैं, और उन हूरियों को 80 कपड़े बनाए जाएंगे, और उन 80 कपड़ों के अंदर से भी आप उनको फील कर सकेंगे, उनकी सेक्सुअल अरोजनेस को फील कर सकेंगे। और आपको वो अलिफ नंगियां नहीं होंगी, लेकिन फिर भी अलिफ नंगियां होंगी क्योंकि आपको नजर आ रही होंगी नंगियां। और फिर इज इट उसके बाद मेंशन आपको समवेयर इन सेक्सुअल हदीस? ताकत भी दी होगी, आपको सेक्सुअल ताकत भी दी होगी वहां पे। फिर अल्लाह मियां फरमाते हैं कि आप जो हैं उनके जो बुबूज होंगे, खवातीन के जो आपको जन्नत में मिलेंगी, वो गोल गोल और टाइट होंगे, वुलतू पुरस होंगे। इन तमाम बातों से पता ये लगता है कि उस टाइम पे आपको सेक्स की और इन तमाम चीजों का इल्म होगा, ठीक है। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि हमें इल्म नहीं है, उस वक्त दिमाग हमसे छीन लिया गया, तो सब कुछ पता होगा आपको। अभी आपने कहा था आप सरेंडर और अभी आप इसके ऊपर हुज्जत देना शुरू कर दिया, आपने फंस गए हुज्जत दे के आप। सर सरेंडर में इसलिए क्योंकि आपके सामने मेरा नॉलेज कुछ नहीं होगा, बट मैं सरेंडर अभी इसलिए नहीं हो रहा हूँ क्योंकि मेरा एक ईमान है। ईमान की बात हम करते ही नहीं, हम तो लॉजिक की बात करते हैं भाई। ईमान अपने पास रखें, घर में रख के आए, यहाँ पे हमारे साथ जो लिखा हुआ है उसकी और लॉजिक की बात करें। अगर लॉजिकली नहीं है तो सरेंडर कर देना ज्यादा बेहतर था, जो आपने पहले किया था। मैंने इसीलिए उस बात पे चुप कर गया था, मैंने कहा था ओके थैंक यू, यू सरेंडर, दैट वाज मच बेटर रादर देन पुटिंग अ डिफेंसिव पोजीशन। क्योंकि अगर आप डिफेंसिव पोजीशन पुट करेंगे तो मेरा आर्गुमेंट आएगा। ये सर लास्ट 1 मंथ से आपकी स्ट्रीम सुन रहा हूँ मैं, हम्म, और काफी कुछ बदला है तब से, हम्म। चेंजेस देख रहा हूँ मैं खुद के अंदर। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं सर, मैं क्या कहना चाहूंगा, मैं तो आपका वेट कर रहा हूँ, नहीं, अगर आपको कुछ आपको कहना। आपको आपको नहीं बोल रहा, आपको नहीं बोल रहा, मैं वाइफ से शेयर कर रहा था। हम्म। अगर आपकी वाइफ को कोई स्पेसिफिक सवाल है तो कर सकते हैं। एक्चुअली शी इज शाय, वेरी शाय टू से एनीथिंग। आप उनसे पूछ लें सवाल और खुद कर दें, ताकि उनके सवाल को नहीं जवाब दे दिया जाए। Okay, will you give me some time? Afterwards, I will back श्योर, join again. आप यहीं पे म्यूट करके बैठे रहे, म्यूट कर लें, Sure, आपकी sure. बात हमें नहीं आएगी। और जब You can add someone else. Okay. Thank you. ओके, अमित भाई इनको निकालिएगा नहीं, इनको यहीं पे रहने दीजिएगा, जी और जी। जिन जिनको किसी और को लेना ले लें। ओबेदुर भाई आए हुए हैं। अरे यार नहीं यार, I don't have time to speak with this kind of a guy. क्या करें, और कोई जवाब ही नहीं। कोई बात नहीं, लेट्स टॉक अबाउट कौन समथिंग सा एल्स। मसले की इसको ना इल्म है, ना ये बात सुनता है, ना इसके पास दिमाग में दो टके हैं, इससे क्या बात करनी है यार। अच्छा एडम भाई, ये जो खतना है ये आपको नहीं लगता शैतानी अमल है? नहीं सर, ये आई डोंट नो कि शैतानी आप किस एंगल में कह रहे हैं।
जी लेकिन कुरान में लिखा, कुरान में जब अल्लाह मियाँ फरमा रहे हैं कि भाई मैंने इंसान को सबसे बेहतरीन फॉर्म में बनाया है, तो फिर ये जो काट छांट कर रहे हैं तो गलत है ना, अल्लाह मियाँ के अगेंस्ट में जाके कर रहे हैं। मेरा सवाल ये होगा कि कुरान में कहाँ कहा गया है खतना करो? हाँ, खतना तो कहा ही नहीं गया है, बल्कि अल्लाह मियाँ ऊपर से फरमा रहा है कि मैंने इंसान को उसके बेस्ट फॉर्म में बनाया है। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि मैं अपनी फॉर्म को, बेस्ट हाँ, फॉर्म को वापस बेहतर भी करूंगा। कुरान की मैंने और भी आपको बेहतर आयत दिखाई करेगा। थी, जी सूरह जी नंबर जी 21 की। जी तो वो उसने भी बेहतर करना है, कुछ जी। मसला है हम में। हाँ, साजिद भाई अल्लाह ने हमने मतलब जो जी साजिद भाई हमने जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था वो एडम भाई के सामने पेश करें आप जरा। साजिद भाई म्यूट है। जी अमित भाई जी क्या कह रहे हमने थे जो आप? स्टार्टिंग में जो 3 आयतें कुरान से आपने 3 या 4 आयतें दिखाई थी, जिसमें अल्लाह बोल रहा है कि हमने इंसान को उसके बेस्ट फॉर्म में बनाया और शैतान कह रहा है मैं भटकाऊंगा। हाँ वो कुरान 82 है ना, 82 की 7 और 8। एक सेकेंड। लेकिन अभी जी साजिद भाई को निकाले मैंने हैं। ये भी दिखा दिया ना कि कुरान में उसके ऊपर कंट्रडिक्शन है। फिर दूसरी जगह कुरान कहता है कि अल्लाह कह रहा है कि मैं इसको दोबारा बनाऊंगा और मेरे लिए आसान और बेहतर करूंगा। बिल्कुल जी उससे मजबूत तो ये है, जैसे अभी मुझे हिचकी आ रही है, 1 मिनट पानी पी लो। बिल्कुल हाँ, तो लाला जी ये कुरान कह रहा था ना कि 82 में है अल्लाजी खलक का फसवा का फअदलक फी अय्य सूरति मा शाअ रक्कबक। जिस रब ने तुझे पैदा किया, फिर ठीक ठाक पैदा किया, फिर दुरुस्त किया और बराबर बनाया, जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया। इसी तरह कुरान 40 की आयत 64 में भी है वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम, यानी आसन हमने सूरत बनाया। अल्लाह वो जिसने तुम्हारी सूरतें बनाई और बहुत अच्छी बनाई। और लेकिन वो शैतान एक आयत, कहता है हाँ शैतान वाली जी आयत। कुरान सूरह निसा में आयत आयत 119 में शैतान कहता है कि मैं उनसे कहूंगा कि अल्लाह ताला की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ दो। तो जो मोमिन है वो तो शैतान के कहे पर अमल कर रहे हैं। फिर वाह अल्लाह ने जिस शक्ल सूरत में पैदा किया, जिस तरीके से पैदा किया, वो उसको बिगाड़ रहे वाह हैं। वाह, क्या बात है, क्या लॉजिक है भाई, क्या बात है। हम्म, मैं कहता हूँ बड़ी बड़ी बात पकड़ी है आपने। ऑसम। बिल्कुल। अमित भाई आप निकालिए एडम जरा सर, सूरह निसा की आयत 119। ये हाँ, जी भाई वो मैं वो यत्तखज़ मेरे ख्याल शैतान में वलिय्यन मिन दुनिल्लाह। जी पढ़े रह जी हम आप। आपस वाली बात बाद में करेंगे। हमारे मोमिन भाई मेरे ख्याल में वापस आ गए हैं। जी भाई। एडम भाई, आपको मैं 1 महीने से सुन रहा हूँ और हम्म, मैंने अपने अंदर काफी चेंजेस पाया है। मैं पहले भी कट्टर नहीं था वैसे भी, हम्म, बट स्टिल आपकी जो बातें हैं वो आप सारी दलीलें देते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप जो आए उठे सुठे बोल देते हैं, आप जो भी बोलते हैं उसकी प्रूफ देते हैं बकायदा। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि ठीक है, ये जो भी लिखा है, जो भी हुआ है पास्ट में, ये गलत है। तो अभी हम किस खुदा को माने एडम सर, ये किसको सिली माने? बात। क्योंकि क्योंकि मैं देखिए बात सुनिए, 45 मैं अभी आपको बताता हूँ। 45 इयर्स का हो चुका हूँ हाँ सर मैं अभी। आपको बता देता हूँ, इसका आंसर देता हूँ। अगर मुझसे पूछ के मानेंगे ना, कल को कोई और बंदा आपको कहेगा और फिर आप उसकी मान लेंगे। देखिए सर, ये आपकी अपनी जर्नी है। आपको पता है मैं किसको मानता हूँ, लेकिन अगर मैं उसके बारे में बताऊं और आप मान लो तो फिर क्या होगा? फिर इसका मतलब है कि आपने वही काम किया जो आपने इस्लाम के साथ किया था। भाई आपके पास दिमाग है, यूज इट, स्टडी करें थोड़ा सा। ब्लाइंड फॉलोइंग ब्लाइंड फेथ हमेशा गलत होता है। मुझे जी अब मोहम्मद को छोड़ के मुझे मोहम्मद बना दोगे, फायदा? जी, नहीं मैं आपसे खाली सजेशन ले रहा था। भाई वंस अगेन मैंने कहा, अगर मेरी सजेशन के ऊपर गेम कर लोगे तो मोहम्मद की तरह ब्लाइंड फॉलोइंग हो जाएगी मेरी।
ठीक है ना? You're right. तो आई डोंट वांट एनीबॉडी टू डू ब्लाइंड फॉलोइंग, आई वांट देम कि वो उसको स्टडी करें, समझें और देखें। आई अंडरस्टैंड कि आप किस दोराहे पे खड़े हैं इस वक्त, मैं बिल्कुल आपको इस वक्त समझ रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा था अगर आप अपनी वाइफ के साथ सवाल कोई है करना चाहते हैं, कोई फाइनल नेल इन द कॉफिन है जो रह गया है, तो मैं हाजिर हूँ यहाँ पे आपका जवाब देने के लिए। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे आप बता दो मैं उसको मान लूंगा, सर नहीं, फिर वो काम नहीं बनेगा ना। फिर तो आप मेरी फॉलोइंग पे आ जाएंगे, एक फॉलोइंग छोड़ के, ब्लाइंड फॉलोइंग छोड़ के दूसरी ब्लाइंड फॉलोइंग पे। सर एकेडमिकली मेरे को सर कोई डाउट नहीं है, बिकॉज मैंने पहले ही इसलिए आपको बोल दिया था सरेंडर, क्योंकि आप जो भी बोलते हो आप हवाई बात नहीं करते हो, आप प्रूफ दिखाते हो। ठीक है, तो ठीक है, मैं अभी सर्च करूंगा इस बारे में इन फ्यूचर व्हाट शुड आई फॉलो। ओके, एंड माय वाइफ इज आल्सो नाउ एक्स मुस्लिम फॉर श्योर। हाँ ये वो जो दिखा रहे थे आप। जी, ये तो मैं कह रहा था लाला जी कि इसमें शैतान कह रहा है कि मैं उनसे कहूंगा कि अल्लाह ताला की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ दो। अरे अरे अरे, शैतान जीत और गया। उनको बोला जी, ये अल्लाह ही तो बहुत बड़ा शैतान नहीं है? और ये सारे काम जो जितने भी मोमिन काम कर रहे हैं सारे शैतानी अमाल है। आप देखेंगे तो जैसे इब्लिस ने अल्लाह ने कहा इब्लिस को कि आप एडम की बुत परस्ती करो। एडम बुत ही था ना उस समय, माशाल्लाह। लेकिन इब्लिस ने नहीं की, और आज मोमिन भी बुत परस्ती नहीं करे, ये भी इब्लिस की काम कर रहे हैं। बिल्कुल, वरना सबको मेरी परस्तिश करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आदम हूँ, आदम अलैहिस्सलाम, सजदा करना चाहिए इन सबको मेरा। अल्लाह ने कहा था फरिश्ते हमें सजदा करते हैं, जिसने सजदा नहीं किया वो शैतान हो गया, जिसने नहीं किया सजदा वो शैतान है। वाह, समझ गए? तो फिर आदम को सजदा खुदा ने तो किया नहीं था, तो शैतान हुआ ना। वाह वाह, क्या बात है। जब फरिश्ते ने इनकार किया और कहा कि खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया, इसलिए मैं सजदा नहीं करूंगा क्योंकि मैं अफजल हूँ, मैं बरतर हूँ। तो अल्लाह ने कहा तू मर्दूद है। लेकिन जितने भी फरिश्ते थे वो किससे बने हुए? नूर से। उन सब ने सजदा किया? हाँ किया। अल्लाह किससे बना हुआ? नूर से। अल्लाह को भी करना चाहिए था ना, नहीं किया, शैतान हो गया। अच्छा भाईजान, आज का सवाल बड़ा स्ट्रेंज है, गुस्सा ना कीजिएगा। सवाल यह है, अल्लाह के सामने अल्लाह मियां आपको क़यामत के दिन नंगा दरंगा क्यों कर देगा? सवाल ये थोड़ी है, सवाल तो आप लोग का टॉपिक कुछ और है ना। यही है, नंगा दरंगा करेगा और अनसर्कमसाइज करेगा। नहीं, जो टॉपिक की पूरी लाइन है वो आखिरत के दिन, आप लोग क्या लिखा है आप लोगों ने उसमें? आखिरत के दिन क्या दिल दी वेल्डिंग हो जाएगी, उसकी वेल्डिंग, क्योंकि अल्लाह ने कहा है ना नंगा दरंगा और अनसर्कमसाइज। ये देखें स्क्रीन के ऊपर आपके है, आपका सर्कमसिजन वापस वेल्डिंग कर देगा ना, नंगा दरंगा खड़ा करके सर्कमसिजन वापस कर देगा। ऐसा लिखा है बाकायदा? ये आपके सामने है, स्क्रीन पे पढ़िएगा, रीड करें क्या लिखा है। सर बहुत ठीक है, आप ही पढ़ दीजिए। सर मैंने तो पढ़ दिया अब आपसे पूछ रहे हैं। तो हमारी आम भाषा में उसको क्या बोलते हैं? वो दिल के बाद आपने दिल अरे के यार बाद वो लफ्ज नहीं ना लिखा हुआ, वो दिल नहीं था, LUND है, नहीं लिखा हुआ ना। LUND है। हाँ, अब ये देखे ना दिल वाली। अरे ये कौन आ गया भाई? हमारा प्यारा साहिल आ गया। ओहो मेरे लाला, ओरिजिनल एकदम 110% ओरिजिनल। अरे 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 अरे, स्वागत है मेरे भाई का। हम सारे तो आज भी ये कह रहे थे कि हमारा भाई लगता है गया हुआ है वहां पे उसके साथ, पप्पू बच्चे के साथ। नहीं, पप्पू बच्चे के साथ नहीं था मैं। साहिल सर, इधर किसी ने लिख के भी डाला था, कॉफी शॉप का नाम भी लिखा था उन्होंने, है अच्छा, ना? जहाँ पे मीटिंग थी। हाँ, लोगों ने आपकी कॉफी शॉप तक बताई है कि इफू और साहिल वहां बैठे हुए कॉफी शॉप पे।
इफ्फू मैं इफ्फू भी आ मैं जाएगा। ढूंढ रही हूँ किधर गया वो। इफ्फू 3-4 दिन से गायब है एकदम। अरे लगता है आपने जोर का झटका बहुत धीरे से दे दिया उसको, गायब ही हो गया यार। ओ बाप रे बाप, जोर का झटका जोर से लगा। नहीं दिया आपने धीरे से, लगा जोर से। अच्छा ऐसा है, हाँ, तो जोर से देता तो क्या होता फिर? फिर तो राम राम, राम नाम 302 सत्य हो जाता। राम नाम सत्य हो जाता। साहिल सर चीखे 302 लगने चीखे हैं। निकल जाती। आहा। खैर, क्या साहिल हालचाल साहब, हुकूक सीकर जी, और हमारे अमित भाई भी है, क्या हालचाल? जी सर हमारे पास ये आबिद भाई हैं, ये एक्स मुस्लिम हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं। इनके साथ अरे गपशप लग वाह, रही थी उतनी देर में, हमारे आगे परवेज मोमिन भाई आ भाई। गए। तो हमने कहा जरा इनसे गपशप लगा लें, लेकिन इनके साथ, इनको आपको ईमेल एड्रेस दे दिया, इनके साथ रब्ता करें, कोई संडे बनाएं इनके साथ। जरूर, जल्दी ही तो बनाएंगे। इनसे संडे बनाएं। बड़े अच्छे इन्होंने सवाल रखे थे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन भी रखे थे, प्यारे प्यारे, अपनी आजकल की मुसीबतों के ऊपर, उसके हम जवाब दे रहे थे। फिर ये भाई आ गए, तो मैं कहा जरा इनको आज के टॉपिक के ऊपर ले आए, तो जरूर, फिर पहले दोबारा इनसे हम बात आपके कर साथ। लेते हैं। हाँ, जी। अच्छा, तो ये आबिद भाई के साथ इनके सिस्टर भी हाँ, एक्स मुस्लिम है साहिल भाई, अगर दोनों एक साथ आएंगे तो और जबरदस्त हो जाएगा। अरे सोने पे सुहागा हो जाएगा फिर तो। जी। मुझे नहीं लगता आई कैन ब्रिंग माय सिस्टर, क्योंकि वो अभी बांग्लादेश में है, और चलें, पर मैं कोशिश करूंगा। नहीं कोई इतना मसला नहीं है, आप खुद आ जाएं, काफी है। अगर वो आ सके अच्छा, तो बेहतरीन, नहीं आ सके तो कोई इतना मसला नहीं, सिचुएशन ऑब्वियसली आपने खुद देखनी है अपनी। अच्छा। लेकिन अगर पॉसिबल होगा तो जबरदस्त हो जाएगा, मैं कहता हूँ धमाका हो जाएगा जबरदस्त किस्म का। श्योर, श्योर। अच्छा जी, क्रैशी साहब। जी सर, हाँ अब जी, हाँ आप जी। मुझे बता दें, अल्लाह मियाँ नंग पड़ंग खड़ा क्यों कर रहा है आपको आखिरत के दिन? अरे तो पढ़ के तो सुना दो एक बार पहले। पढ़ तो दिया भाई, और किस तरह पढ़ के दूं? नहीं, मैं समझ नहीं पाया, फिर से पढ़ दीजिए। You will be gathered before Allah barefoot, naked and not circumcised. जी सर। हाँ हाँ, भाई उर्दू में, हिंदी में पढ़ो ना भाई, ऐ हमारी लोगों, भाषा। तुमको हाँ अल्लाह के सामने जमा किया जाएगा हाँ बेयर फुटेड, यानी नंगे पैरी। बिना, हाँ, बिना चप्पल या कुछ इस तरीके से, नंगे पैर, नंगे, अलिफ नंगे, अलिफ हम्म, नंगा। हाँ अलिफ नंगा, जी हाँ, और जी। आपका जो सामान बिन मुबारक है, खतना का। उसमें उसमें अगर छिलका इलका मारा है, जैसा वो पेंसिल नहीं छिलते, वैसा हाँ छिला हाँ। विला गया है, तो वो फिर से वो पहले के ऐसा सील जुट पैक हो जाएगा। जाएगा। आय हाय हाय हाय, सील पैक, वाह। अरे भाई, जब इंसान मर जाएगा उसकी हड्डी पसली सब गल जाएगी, जब वो अल्लाह ताला पूरा इंसान को वापस जोड़ देगा, तो उतनी सी छोटी सी बात को कहाँ ला रहे हो बीच में? भाई नेकेड क्यों हो, मैंने सवाल आपसे किया है। अल्लाह मियाँ को नंग पुना क्यों इतना पसंद है, नंगा क्यों खड़ा कर रहा है सबको? तो नंगा तो इंसान पैदा ही हुआ है ना। लेकिन अब तो बड़ा हो चुका है ना, बच्चा तो नहीं है ना। सब लोग 25 साल के पैदा होंगे ना दोबारा, छोटे बेबी तो पैदा नहीं होंगे। अरे तो आपकी मामा भी अगर 110 साल की हो के उनका ध्यान तो होगा ना, तो यहाँ पे 25 साल की टैटम टैट नंगी पंगी खड़ी होंगी। आपकी अलिफ सिस्टर नंगी। भी यहाँ पे टैटम टैट अलिफ नंगी खड़ी होंगी, और आप सब एक दूसरे को देख रहे होगे वहां अलिफ नंगे सारे। उन सब चीजों का एक दूसरे पे कोई असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों बिल्कुल होगा? क्योंकि अल्लाह ने आपके दिल में वो हैरस रखी हुई है, क्योंकि आपको टैटम टैट हुरे भी मिलनी है विद वुलतू पुरस बूब्स। बच्चों वाली वो बात तो कर रहे सब हो? जब वो सब हिसाब किताब होने के बाद की बात है। हाँ, तो इस अरे वक्त लेकिन आपके पास नंगा है क्यों नहीं। खड़ी करना है? नंगा क्यों खड़ा हाँ, करना है, सवाल ये है, नंगा क्यों कपड़े खड़ा कहाँ गए? करना है? अच्छा ये फीलिंग बताइए, हो नहीं हो उससे अल्लाह के फर्क नहीं पास पड़ता। अल्लाह के पास कपड़े थे कि नहीं थे? हम्म। अल्लाह के पास कपड़े हैं कि नहीं है? रोटी कपड़ा मकान जो है ना, ये सब दुनिया की जरूरत है, वहां की नहीं है। आखिरत की जरूरत नहीं है। नहीं, ओके, तो यहाँ पे आखिरत में हर कोई नंगा रहेगा, बिल्कुल। 100% अलिफ नंगा बैठा रहेगा। अलिफ नंगा। हाँ, तो हूरों को आपने 80 कपड़े क्यों बनाए हैं, फिर भी उसके अंदर से सी थ्रू देख वो रहे हैं अभी आपने? अभी 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 हूर की बात कहाँ से आ गई? अभी तो इंसाफ होगा, अच्छा वहां पे इंसाफ हिसाब होगा, किताब होगा, तो उसके इंसाफ बाद होने अच्छा, की तक। बात है ना। अच्छा कपड़े कब मिलेंगे आपको? वो तो सब जन्नत में, या जन्नत में जाने के बाद।
तो जन्नत में जाने से पहले कपड़े नहीं मिलेंगे? शायद ना मिले। हाँ, शायद ना मिले, शायद ना मिले कि मिलेंगे? कंफर्म नहीं मिलेंगे, हो सकता है। नहीं मिलेंगे। चलें, आपकी वाइफ को भी बता देता हूँ कि हदीस पूरी पढ़ लिया करें। अल्लाह मियाँ उसी टाइम पे डे ऑफ जजमेंट पे सबसे पहला ह्यूमन बीइंग जिसको कपड़े पहनाएगा वो अब्राहीम होगा। उस वक्त मोहम्मद भी नंगा है, मोहम्मद की सारी बीवियां भी नंगी हैं, सारे मुसलमान भी नंगे हैं, आपकी वाइफ भी नंगी है, आपका माँ भी नंगी है, आपका बाप भी नंगा है, सब नंगे पंगे हैं और सब देख रहे हैं इब्राहिम को कपड़े पहनाए जा रहे हैं। उसके बाद पता नहीं किसको बनाए जाएंगे, लेकिन मोहम्मद और उसकी बीवियों की बारी मच लेट रहेगी। उस टाइम तक आप देख रहे हैं इब्राहिम ने कपड़े पहन लिए, उसका थैला छुप गया, लेकिन मोहम्मद का थैला सब दिख रहा है और मोहम्मद की बीवियों के सारे औजार दिख रहे हैं। यार आप क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खत्म की हो भी गई मानते गेम, हो? खत्म हो गई, बस खत्म हो गई गेम। परवेज भाई दिल पे हाथ रख के बोलना, ये गंदा नहीं लगता, अजीब नहीं लगता ऐसी सब बातें? दिल पे हाथ रख के बोलना भाई। और आपकी मोहतरमा जो है भाभी जी को भी पूछना, दिल पे हाथ रख के, गंदा नहीं लगता ऐसा सब? ये क्या गंदी गंदी अजीब अजीब बातें बताई है आपके रसूलुल्लाह ने? हमको उनकी कोई भी बात में गंदगी नहीं नजर आती, आप लोग की सोच ही गंदी है। चाहे वो गंदी हो। अच्छा एक मिनट, भाभी जी को आवाज आ रही है ना? भाभी जी, वो नहीं बात करेंगी, वो नहीं, वो नहीं। अरे अभी वो आवाज आप अभी पीछे से वो आपको मुझसे लुकमा दे रही थी ना भाभी जी। साहिल भाई वो सुन रही है, आप बोले। भाभी जी मेरा सवाल आपसे है, ये परवेज भाई तो समझो ईमान के अंधे हो चुके हैं। भाभी जी आप बोलो, ये अच्छा लगता है सबको नंगा खड़ा करना? उसमें आप भी शामिल है, आपके शौहर भी शामिल है, आपकी माँ बहन भाई सब शामिल है, सब नंग धड़ंग अलिफ नंगे। भाभी जी आप बताओ। और सब 25 साल के टैटम टैट। हाँ अच्छा चलो, बच्चे पैदा होते तो समझ में भी आता, 25 साल यार। इनका ससुर भी होगा, इनके फादर भी होंगे, इनके भाई भी होंगे, इनके बहनें भी होंगी, सारे सब नंगे। नजारा जरा दिमाग में सोच के देखो। नहीं, मेरा सवाल अभी परवेज भाई से नहीं है, परवेज भाई के दिमाग में तो अभी ईमान की पट्टी पड़ी है। भाभी जी से मेरा सवाल है। सब ईमान वाले ही हैं, यहाँ पे जितने हैं सब ईमान वाले। भाभी जी जवाब दे देना। भाभी जी वो अभी नहीं है, वो दूसरे कमरे में चली गई। अरे शर्मा गई ना भाभी, ये मसला है। देखो शर्मा गई भाभी, और गए नहीं, आपने वटा दिया उनको। इनका इतनी बगैरत हदीस देख रही है, हटा दो यार। हाँ, भगा दो। ये हरामखोर लोग जो है ना, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा सॉरी फॉर इंटरप्ट। साहिल भाई पूछना ये भी था, इनसे आप पूछ लें मोहब्बत से। हाँ जो भी है यार, मेरी थोड़ी वीक है ना यार, समझा करो यार। इंटरप्शन नॉट इंटरप्शन। हाँ वही, सेम टू यू। तो ये कहने वाला था हाँ जो आपने बोला वही सेम मेरी तरफ से, ठीक है। तो अरे जब 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 साजिद भाई गलत इंग्लिश बोलते हैं मुझे इतनी खुशी होती है ना, मेरी मजा उसी में ना, यही हंसते हैं। लेकिन आपका तलफ्फुज़ तो फिर भी नहीं सुधर रहा ना। बहुत सुधर जाएगा, चलिए पहले तखल्लुस जी। तो ये पूछना था मुझे कि जो अकीका होता है लाला जी, वो 7 दिन में हो जाता है, ठीक है। नबी ने कहा 7वें दिन अकीका कर दो और उसके खतने को अलग कर दो। अब जो महशर में लोग खड़े होंगे, मुसलमान खड़े होंगे, जो खतना शुदा होंगे, जो मखतून होंगे, उनके खतने को वापस लगाया जाएगा। अब जो 7 दिन में जो बच्चा जिसका अलग किया गया था हिस्सा, वो तो बहुत छोटा सा रहा होगा, लेकिन 25 साल का फिर मर्द उसको जोड़ेगा तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, छोटा बड़ा नहीं लगेगा। उसका जवाब उन्होंने दे दिया ना कि अल्लाह ने जब गली सरी हड्डियों को वापस जोड़ दिया तो खतना भी जोड़ सकते हैं। तो दैट्स नॉट द पॉइंट राइट नाउ। हम उससे दूसरे का दूसरे में जोड़ दे यार, हम उस पॉइंट से बियॉन्ड जा चुके हैं ना, आगे जा चुके हैं हम। चलो जी, मान लिया खतना किसी ना किसी तरीके से अल्लाह जोड़ देगा, मान लिया यार, मान लेना यार साजिद थोड़ी देर के लिए, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान ले। अब बात जुड़ गया। अलिफ नुंगपुना क्यों है? आपने जो हुज्जत दी थी वो तो पूरी नहीं हुई। आप अलिफ नंगे होंगे, अल्लाह में कपड़े पहना रहा है, आप सब देख रहे हो। इब्राहिम को कपड़े पहना, अल्लाह के कपड़े भी हैं, पहना भी सकता है, लेकिन वो इतना कमीना है कि वो पहले सबको नंगा खड़ा करके देखेगा, एंजॉय करेगा सबका नंगपुना, फिर बारी बारी सबको कपड़े पहनाएगा। क्यों?
भाई देखो, इन सब चीजों के हर सवाल के अपने पास जवाब नहीं है कि अल्लाह ताला ये नहीं है काम ना? क्यों करेगा। ओके, तो अल्लाह पोर्नोग्राफी देखना पसंद करता है, नंगे लोगों को देखना पसंद, अल्लाह पसंद करता है कि लोगों को नंगा खड़ा करे, नंगे को देखे और एंजॉय करता है नंगा देख के। और लाला जी यहाँ एक नया सवाल और उठ गया कि अल्लाह मियाँ खुद अपने हाथ से जब इब्राहिम को कपड़े पहनाएगा तो अल्लाह मियाँ के हाथ है। उड़े नहीं, वो कहेगा कुन फयकून, लेकिन बात यह है कि कुन कह के तो सारी दुनिया को भी एक दम में कपड़े बना सकता है, वो पहले इब्राहिम को भी बनाएगा। हाँ मतलब हाथ से पहना रहे ना, वन बाय वन पहनाएगा। वो कुन फयकून क्यों कर रहे, कर सकता था ना, नहीं कर रहे ना। इब्राहिम को पहले बनाएगा, मोहम्मद अभी भी खड़ा नंग पंग, मोहम्मद देगा टिंग 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 डोंग बेल पुसी इन द बेल। इब्राहिम को कपड़े मिल रहे हैं, वाह जी वाह, क्या बात है। अल्लाह मेरे को भी दे दे यार, लोग मुझे नंगा देख रहे हैं, मेरे को भी दे दे, मैंने हाथ अपने प्राइवेट पार्ट पे रखे हुए, अल्लाह मुझे दे दे, हाथ गंदे हो गए हैं, सुसु आ रहा है। हालांकि सबसे पहले कपड़ा तो उतरा था आदम का। के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी, और क्या है ना, महबूब के साथ नाइंसाफी, दोस्त को कपड़े भी दे दिए। दोस्त है ना इब्राहिम, अल्लाह का दोस्त है ना, खलीलुल्लाह दोस्त है, दोस्त को कपड़े दे दिए, महबूब को कपड़े महबूब का नहीं दिया। हाँ सर, महबूब को कपड़े कौन देता है यार, आज मैं खुद सोचा ना, महबूबा वो कपड़ों के बगैर ही अच्छी लगती है। अल्लाह की सोच दिखा दें आप, व्हाट्स द पर्पस ऑफ हैविंग पीपल नेकेड, क्या पर्पस है तो भाई अल्लाह का लोगों को नंगा खड़ा करने का? आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, पूरा चैप्टर पढ़ा दो। जौन सी हदीस को करूंगा, इसके ऊपर दो हदीस से ऊपर से इसका कोई रेफरेंस नहीं है, क्योंकि एक कमेंट्री है कुरान की आयतों के ऊपर, इससे एक हदीस ऊपर जाओगे तो उसमें किसी और आयत की कमेंट्री है। दिस इज द तफसीर जो बुखारी ने दी है, दिस इज तफसीर की किताब, इसमें हर हदीस एक डिफरेंट आयत की तफसीर के ऊपर है, किताबुल तफसीर है, इसके अंदर कोई सीक्वेंशियल हदीसें नहीं लिखी हुई। प्लीज यार, डू नॉट टीच द टीचर, डू नॉट टीच द टीचर, उस्ताद को पढ़ाते नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, इस्लाम में खतना है? खतना है, ओके लेट्स टॉक अबाउट खतना। कुरान में खतना दिखा दो, क्यों है, कहाँ है? हदीस में तो होगा ना। ओके चलो हदीस की बात करते हैं, खतना क्यों करना है, इसका जवाब दे दो। ये आप साइंस में भी सवाल पूछो ना, साइंस को गोली मारो ना, खतना क्यों करना है, मैंने इसका सवाल आपसे किया है, मोहम्मद ने क्यों कहा खतना करो, क्या रीजन थी? भाई जितना मुझे जानकारी है उससे ये पता चलता है कि भाई अगर आप खतना नहीं कराते हैं तो पेशाब की गंदगी का कुछ, अरे ये साइंस बता रही है आज की, मोहम्मद ने क्या कहा है, खतना क्यों कराना है, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। और वो पेशाब की गंदगी नहीं होती, वंस अगेन आपको इतना भी नहीं पता, साइंस भी नहीं आपने पूरी पढ़ी, वो जब आप सेक्स करते हो उसके बारे के अंदर है, इररिलेवेंट, पेशाब का कोई ताल्लुक नहीं है। सुसु करते वक्त सुसु जो है वो झिल्ली के अंदर नहीं बढ़ रहा होता। एनीहाउ फॉरगेट दैट पॉइंट, व्हाट आई एम आस्किंग इज कि मोहम्मद ने खतने का क्यों कहा है? क्यों कहा है वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वजह यही होगी कि गंदगी क्या, तो फिर लड़कियों को भी दे देना चाहिए था एक टूटी। लड़की जब लड़की को सुसु जब करते हुए कभी देखा, उसका सुसु कितने हिस्सों को लग के नीचे गिर रहा होता है? लड़की को सुसु करते हुए देखा, नहीं देखा? नहीं भाई, शादीशुदा हो, नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? लड़की का सुसु कहां कहां से गुजर के गिर रहा होता है, वो ये मस्त, क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं देखा, ये बता। हद हो गई यार, क्या स्टूपिड बातें करते हो मेरे साथ, क्या क्या स्टूपिड बातें करते हो लोग यार। साजिद भाई, ये जो इस तरीके से साइंस लाने की कोशिश करते ना, फिर मैं दिल करता है यहाँ तो मैं इन्हें पकड़ के ना टकरे मार मार के इनको तोड़ दूं कि यार बकवास बातें करते हो तुम लोग। लेकिन लाला जी ये हार्ड था यार, लेकिन ये हार्ड था कि क्यों नहीं देखा। देखो जाके पता लगे। अबे वो लड़की, हाँ यार खुद पर अफसोस करो, इतने बड़े हो गए देखे नहीं। एक छोटी सी झिल्ली के अंदर सुसु चला जाता है, अबे लड़की का सुसु निकलना ही अंदर से छोटे से सुराख में से है, निकलते निकलते उस पता नहीं किसकी जगह से गुजर के निकलता है, उसको तो कुछ नहीं होता, ये बंदों को हो जाएगा झिल्ली से सुसु से। मैंने पूछा है खतना क्यों करना है मोहम्मद के, वो बताओ मुझे, साइंस ना पढ़ाने की कोशिश करो, साइंस में तुम लोगों को अंब का नहीं पता भाई। हाँ खतना क्यों करना है वो बताएं भाई। रीजन तो अपने को यही मालूम है, वो रीजन तो दूसरा नहीं। रीजन ये जो आपको मालूम है ये तो फॉल्सिफाइड रीजन होगी कि पेशाब अंदर चला जाता है। पेशाब जो है ना लड़की के किसके हिस्से के अंदर जाता है ये भी आपको पता होगा, नहीं पता जाके सर्च कर लीजिएगा। नाउ मोहम्मद ने खतने का आपको ये भी नहीं पता, ये सुन्नत क्यों है ये भी नहीं पता, मोहम्मद का खतना किसने किया था ये भी नहीं पता, मोहम्मद का खतना 45 साल में हुआ था या 50 साल में हुआ था ये भी नहीं पता। तो फिर मुझे बताओ आपको पता क्या है, यहाँ पे अंब लेने आए हो?
मैं बता रहा हूँ आपको, सुनो मेरी बात। सुनाओ। इंसान जो पैदा होता है ना, तो उसको खाना हाँ। चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो हर चीज वो बनाना सीखेगा नहीं, समझ गए ना? खतने हर का चीज वो रोटी अपने कपड़ा से क्या ताल्लुक सुनो है? मुझे खतने की सुनो, बात कराओ कि मैं मोहम्मद ने क्यों कहा? हाँ तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ ना। आप बोल रहे तुमको ये नहीं पता वो नहीं पता, तो मानते क्यों आदम हो, का वही खतना पूछ हुआ रहा हूँ था? ना। आदम का खतना हुआ था? अरे भाई, मैं अब जो बात कर रहा हूँ ना, पहले उसका जवाब नहीं, जो सुन आप लो। बात कर रहे हो वो बोंगी कर रहे हो, क्योंकि आप कुरान के ऊपर मुझसे बात करने हो, हदीस के ऊपर मुझसे बात करने हो। आई डोंट केयर कि आपने गाड़ी कैसे बनानी है, घर कैसे बनाना है, खाना कैसे खाना है। आई डोंट केयर। आप मेरे साथ यहाँ पे कुरान और हदीस पे बात करने आए हमको एक हो। चीज आदम का खतना हुआ था? उस हिसाब से देखा जाए तो नहीं हुआ होगा उस टाइम। बड़ा शुक्रिया आपका। इसका मतलब है कि आदम को खतने के बारे में नहीं बताया था, खाने पीने का कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज से। वंस अगेन दोबारा से जाओ, जाके रिसर्च करके आओ, और मुझे ये नहीं बताओ कि जनाब हमारी साइंस ने ये बताया है। साइंस ने आपको अंब भी नहीं बताया, नंबर 1। नंबर 2, आपने बताना है खतना क्यों करना है, दैट्स इट। मोहम्मद ने क्या कहा खतना करो, क्यों करना है खतना, रीजन क्या है इसके पीछे? मोहम्मद की रीजन बतानी है आपने। हमको हमको आजकल के हमको मुसलमानों ने जो साइंस से गेम डालने की कोशिश की है वो नहीं बतानी। मोहम्मद ने क्या रीजन दी है वो बतानी है आपने। हमको रीजन का नहीं पता, हमको एक हुक्म आया, हम उस पे तो अमल कर रहे हैं, कहाँ पे बस आया? हमको ये गिव पता। मी द हुक्म, कहाँ आया है? खतने का हुक्म कहीं ना कहीं हदीस में होगा, इसलिए कहाँ हमको पे पता है? है। दिखाओ दिखाओ। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हर चीज हमको देखना और तो पढ़ना फिर नहीं, आप हमको। आप इस स्ट्रीम में जुड़े हैं इस खास टॉपिक के ऊपर। जब मैंने आपको नेकेडनेस का दिखाया, आपने कहा जी आप हर चीज को गलत ले लेते हैं। हमने कहा ओके, हम गलत लेते थे, सही कर दो। आपने कहा हमें नहीं पता, हम नहीं बता सकते। ओके, आप खतने पे आओ। मैंने कहा जी खतने पे आ जाते हैं। आप खतने पे लेके गए हो, मैं नहीं लेके गया। अब आपने खतने पे लेके गए हो, मैंने पूछा मोहम्मद ने खतने का क्यों कहा है, अब आपको नहीं पता है। तो भाई फिर मैं आपसे यही सवाल है, फिर आप स्ट्रीम में क्या लेने आए हो? अगर आपको किसी चीज का पता ही नहीं है मेरे भाई, तो स्ट्रीम में क्या हमें किस बात पे रिफ्यूट करने आए हो, वो बता दो। जिस चीज का पता है वो बता दो, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ आपसे। और उसके साथ पता से परवेज यही है कि परवेज आप भाई इसमें परवेज भाई उसके साथ और एक चीज आप ये भी सोचो कि ये अल्लाह जो है वो खतना करा के क्यों नहीं भेजता, जबकि वो कुरान में कहता है, कौन सी वो आयत है यार, अहसनी तकवीम वाली जो आयत है। हाँ, ahsani तक़वीम, हाँ। साजिद भाई वो कौन से सूरे की आयत है यार, अहसनी तकवीम सुम्मा रददनाहु तुम अस्फला मारद साफिलीन। ना हो, हाँ उससे फी पहले आसन वाली कौन सी तकवीम। आयत है पूरी? इन्नल इंसाना, नहीं उसमें लफी भी एक आयत खुसरीन, है, हाँ सूर्य लेकिन खुसरे में है, उसमें नहीं, सूर्य असर में। लेकिन नहीं, लेकिन उसमें उसमें अल्लाह कहता है कि अल्लाह ने इंसान को जो है वो बेस्ट डिजाइन में पैदा किया, ठीक है, वत्तीनी अहसनी तकवीम। वज़्ज़ैतून वत्तीनी हाँ वतूरी वज़्ज़ैतून सीनीन। वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द हाँ खलक़नल इंसाना लक़द फ़ी खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, है ना, इंसान को एकदम बेस्ट उसमें पैदा किया। तो जब बिल्कुल बेस्ट किया, तरीके से और नहीं किया? बेस्ट फॉर्म में पैदा किया, तो फिर खतना करा के ही भेजना चाहिए था ना अल्लाह को। ये आधा अधूरा काम करके क्यों भेजा अल्लाह ने? अल्लाह ताला हाथ पैर बना सकता है, आंख बना सकता है, तो अल्लाह ताला वो खतना भी नहीं कर कर सकते सकता, थे। खतना नहीं कर सकता था अल्लाह। हाथ बना सकता था, पैर बना सकता था, उसको बेस्ट भी बोल रहा है, लेकिन खतना करके नहीं भेज सकता था। वो काम जो है वो दुनिया वाले पे छोड़ दिया कि भाई मैंने अधूरा एक काम किया है, वो तुम लोग नीचे जाने के बाद पूरा कर देना। नूनी क्या काटने में शर्म आ रही थी अल्लाह मियां को। लॉजिक का सत्यानाश हो गया पूरा। इंसान तो जब पैदा होता है तो उसके दांत भी तो नहीं होते हैं, बाद में निकलते हैं ना दांत तो। वो भी अंदर से ही लगा निकलते तो हैं ना, ना, कोई निकालता तो नहीं ना।